Mm, الحمد لله رب العالمين. Subhanallah. Am I audible to everyone? Kindly raise your hands if I'm audible to everyone. Abbas, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Bob. Okay, so we'll continue our moderation of session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Distinguished guests, respected participants, and dear colleagues. On behalf of Al Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful, I extend a very warm welcome to all of you. Thank you for joining us today for this important and a very insightful webinar titled Strengthening Sharia Governance, the Role of Internal Sharia Audit in Islamic Banking. We truly appreciate your time and presence. For those joining us for the first time, my name is Madiha Rubab. I'm member of Executive Committee of Al Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance, and Takaful, and I have the honor of moderating today's session. Sharia governance lies at the heart of Islamic banking. It ensures that every product, service, and transaction complies fully with the Sharia principles laid down by Sharia. Within this governance structure, the internal Sharia audit function, I repeat, internal Sharia audit function plays a very critical role ensuring transparency, identifying gaps, strengthening compliance, and safeguarding the trust of customers and the wider community. Today's session aimed to bring and highlight the importance of this function. Just hold on a second. My mobile is hanging. Apologies. Okay, today's session aims to bring the importance of this function and explore how it contributes to a sound, ethical, and what we call resilient Islamic financial ecosystem. Now it is my utmost pleasure and honor to introduce our distinguished speaker, Mr. Rahil Hassan. He is head of internal Sharia audit, Bank Islami Pakistan Limited. He has brought extensive expertise in Sharia compliance, Islamic audit frameworks, and governance structure. His contributions to the field of internal Sharia audit have benefited the industry immensely. Just a few housekeeping announcements and reminders. Please keep your microphones muted. And we have the QA session at the end. If you have any questions, do write your or type your questions in the chat box. Now, without further any delay, I would like Mr. Rahil Hassan to share his presentation. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Rubab. Thank you so much. मेरी आवाज और प्रेजेंटेशन स्क्रीन सबको क्लियर है? रुबाब प्लीज कंफर्म कर दें. Yes, sir. Very much. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अल सादिक जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है वो आज हमारा सेशन है. ये सेशन अगर हम ऑडिट की बात करें तो आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि दरिया को कूजें बंद कर दें. तो ये सेशन बिल्कुल इसी तरह ही है कि एक दरिया है. ऑडिट इज अ दरिया, बल्कि मैं समंदर कहूंगा. और वो उसको एक हमें कूजें बंद करना है विद अ लिमिटेड टाइम, बल्कि कूजा भी नहीं कहेंगे, छोटी सी डब्बे में बंद करना है.
इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज हम किसी तरह इस सेशन को अपने टाइम पे जो है वो मुकम्मल करें और मुख्तलिफ चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ शरिया गवर्नेंस, द रूल ऑफ इंटरनल शरिया ऑडिट इन इस्लामिक बैंक। एक कोटेशन के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। इफ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट मैनेज इट। इफ यू कैन नॉट ऑडिट इट, यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। ये कोटेशन बहुत मशहूर कोटेशन है, ऑडिट के हवाले से है ये कोटेशन। आप ये खुद भी इस चीज को देख सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, उसको मैनेज करना मुश्किल है। इसी तरह आपने ऑर्गेनाइजेशन का भी देखा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट नहीं करा सकती तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रस्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है। थोड़ी सी जरा मैं अपनी जर्नी बता दूं। मैंने मीजान बैंक ज्वाइन किया 2004 में एज ए ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन। देन मीजान फैसल बैंक ज्वाइन किया शरिया रिव्यू हेड एंड सेक्रेटरी शरिया बोर्ड 2015 में। I pass out PGD in 2018 as a third position from Darul Karachi. Then CSAA completed 2021. I was lucky enough. I was a part of Faisal Bank conversion team 2021, and then I joined 2024 in Bank Islami as a Sharia review. आज जो हमारा वे फॉरवर्ड होगा वो उसके अंदर हम थोड़ा सा जरा हिस्ट्री शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ऑर्गन्स होगा, ब्रीफ ओवरव्यू होगा शरिया गवर्नेंस का, सुपरवाइजरी मैकेनिज्म जो पाकिस्तान में है, फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, ब्रॉडर एस्पेक्ट, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करेंगे पढ़ने की। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ शरिया गवर्नेंस। तो हम जरा एक चीज समझ लेते हैं कि शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क की हिस्ट्री हमारे पास क्या आती है। स्टेट बैंक ने जब से इस्लामिक बैंकिंग जो है वो जो है फॉर्म हुई, पाकिस्तान के अंदर आनी शुरू हुई है, टाइम बाय टाइम स्टेट बैंक ने जो है मुख्तलिफ गाइडलाइंस जो है वो इशू करनी शुरू की है। और 2008 में पहली दफा स्टेट बैंक ने शरिया कंप्लाइंस का प्रॉपर गाइडलाइंस दी और उसी साल ही रिस्क मैनेजमेंट की एक प्रॉपर गाइडलाइंस दी। देन 2018 के बाद आहिस्ते आहिस्ते जब इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम तेज हुआ, कन्वर्जन प्रोसेस शुरू हुई, मुख्तलिफ बैंक ने भी अपने लाइसेंसेस स्टेट बैंक से लेने शुरू किए, तो 2015 के अंदर फर्स्ट टाइम स्टेट बैंक ने एक फॉर्मल शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया। इस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क में जो की ऑर्गन्स थे उन सबको डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह ताला अगली स्लाइड के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर उन्होंने शरिया बोर्ड के बारे में बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के बारे में बताया और मुख्तलिफ रोल्स उन्होंने बताया। फिर 2018 के अंदर एक और जो है वो स्टेट बैंक की जो है वो आई शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क। 2016 और 17 के अंदर मुख्तलिफ सर्कुलर स्टेट बैंक निकाल चुका था, उसको मर्ज करके 2018 के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिया गया। देन उसके बाद 2018 के बाद उन्होंने 2021 में एक सर्कुलर अपडेट किया, इसमें रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर के हवाले से कुछ उसकी गाइडेंस उसके अंदर लिखी हुई थी। देन 2024 के अंदर एक फॉर्मल सर्कुलर निकाला जिसमें शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अपडेट किया, अब जो और 2021 से वो 25 से वो एप्लीकेबल भी हुआ। ये शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक के लिए एप्लीकेबल है। ये वो बैंक जो कि कन्वेंशनल बैंक हैं और सब्सिडीज हैं, आईबीडीज हैं, इन सब पे ये शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को का मकसद क्या था? स्टेट बैंक को निकालने का मकसद ये था कि शरिया कंप्लायंस इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करना, ताकि जितनी भी जिम्मेदारियां जिसकी हैं, जितनी भी बैंक की जिम्मेदारियां, जितनी भी डिविजन्स हैं, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से उनको बताना कि इनकी क्या जिम्मेदारी है, ताकि शरिया कंप्लायंस इन्वायरमेंट स्ट्रेंथन हो और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो चीजें सही तरीके से आगे चल पाए। ये की ऑर्गन्स हैं शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के, जिसमें जो मैंने जैसे अभी पिछला आपको बताया था कि शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर जो चीजें थी वो ये थी कि उसमें बहुत सारे की ऑर्गन्स थे। तो 8 की ऑर्गन्स हैं जिसको स्टेट बैंक ने एड्रेस किया है इस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क में। पहला की ऑर्गन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हवाले से,
जो इसमें आपने सारी चीजें देखनी है, ओवरसाइट करना है, बहुत सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिक्र की है। क्योंकि अभी हमारा सेशन शरिया गवर्नेंस का है नहीं, इसलिए हम इसको डिटेल से इस वक्त नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर इंशाल्लाह फिर कभी इसको देखेंगे। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का जिक्र है उसके अंदर कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या करना है। शरिया बोर्ड का बहुत डिटेल से उसके अंदर जिक्र है। रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर की इस बारे में गाइडेंस लिखी हुई है। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की है। इंटरनल शरिया ऑडिट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड देन एक्सटर्नल शरिया ऑडिट के हवाले से कुछ इसका जिक्र है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा दे दूं उसका शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क का। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका जिक्र है कि वो ओवरसाइट करेंगे आईबीआई को, या आईबीएस इस्लामी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ओवरसाइट करेंगे। इसी तरह इनकी जो जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो एक जिम्मेदारी ये थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड को अपॉइंट करेंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारी है। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना उसकी जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इसी तरह एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है वो और अकाउंटेबिलिटी का जिक्र है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट और स्टाफ की आईबीआई का, जिसमें जीरो टॉलरेंस का जिक्र है कि शरिया कंप्लायंस की जीरो टॉलरेंस इसके अंदर होगी। इसी तरह एक इफेक्टिव और जो है वो इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड की अपॉइंटमेंट का जिक्र। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का उसके अंदर जिक्र है, जिसमें शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो शरिया बोर्ड को असिस्ट करेगा, कॉन्ड्यूट बिटवीन शरिया बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी बिजनेस डेवलपर होता है, तो बिजनेस डेवलपर जो होता है, जो कोडिंग डेवलप करता है, उसके साथ साथ एक बिजनेस एनालिस्ट भी होता है। बिजनेस एनालिस्ट आपकी कस्टमर की डिमांड को समझता है और उसके बाद फिर वो डिकोड करके जो है या उसकी अपनी जबान में जो है वो डेवलपर को बताता है, तो फिर उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। सेम इसी तरह शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट बिजनेस से अपनी चीजें समझता है, उनकी रिक्वायरमेंट समझता है, उनकी चीजें समझता है, फिर वो शरिया बोर्ड को जो है वो एक्सप्लेन करता है, जिससे वो प्रोसेस फ्लो, पॉलिसीज, मैकेनिज्म सारी चीजें डेवलप करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव शरिया कंप्लायंस रिव्यू इन्वायरमेंट जो है वो फॉर्म होना चाहिए, जो कि शरिया बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुताबिक की हिदायत के मुताबिक काम करें और उसको इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बताएं। देन फिर एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर जिक्र है जो कि फर्स्ट टाइम शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आई कि इंडिपेंडेंट इंटरनल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट हो। इंडिपेंडेंट शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट से मुराद ये होता है कि कोई जो डिपार्टमेंट फॉर्म हो या यूनिट फॉर्म हो, वो या तो रिपोर्ट करे डायरेक्टली इंटरनल ऑडिट हेड को, या फिर डायरेक्टली बोर्ड ऑडिट कमेटी को, जिसे हम बैक कहते हैं। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क आने के बाद पहली दफा जो है वो जो इंटरनल शरिया ऑडिट है उसकी वैल्यू जो है वो सब लोगों को समझ में आई कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र था, इंडिपेंडेंस का जिक्र है, और इसमें ये भी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहे, जैसे ये मीजान बैंक है और दूसरे बहुत सारे इदारे हैं जो कि डायरेक्टली बोर्ड ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करते हैं, यानी वो इंटरनल ऑडिट को भी रिपोर्ट नहीं करते, डायरेक्ट बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। इससे आप अंदाजा ये लगाइए कि इंटरनल शरिया ऑडिट की वैल्यू स्टेट बैंक की नजर में कितनी इंपॉर्टेंट है कि उसने इक्वल कर दिया इंटरनल ऑडिट को और इंटरनल शरिया ऑडिट को। जिस किसी पुराने टाइम के जब शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क नहीं आया था, तो उस वक्त शरिया ऑडिट का शायद कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीजें आती गई और बहुत सारी चीजें जो हैं वो चलती गई आगे, तो उसमें मीजान बैंक का भी एक बहुत बड़ा रोल है और दूसरे बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने शरिया ऑडिट को काफी स्ट्रेंथन किया। स्टेट बैंक की गाइडेंस आने के बाद इसके अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर वाजे हो गई कि बेटा सॉरी कोई क्वेश्चन है? अपॉलॉजी तो सर। इसमें शरिया ऑडिट की स्ट्रेंथन का पता लगा। इसमें लोगों को ये अंदाजा हुआ कि शरिया ऑडिट का फंक्शन या शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इस्लामिक बैंक के लिए।
अमूमन जितने भी फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक हैं, आपने देखा होगा कि उनका उनका फंक्शन अमूमन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, लेकिन जो बैंक कन्वेंशनल के अंदर या विंडो हैं, तो वो ज्यादातर रिपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट हेड को, लेकिन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का जिक्र था कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जो है वो न्यू इनोवेशंस और प्रोडक्ट लेकर आए। इसी तरह एक्सटर्नल शरिया ऑडिट के बारे में इसका जिक्र है कि एक्सटर्नल शरिया ऑडिट भी जो है वो काम करेगा और किस तरह काम करेगा इसके। अच्छा, जैसे अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑडिट के हवाले से, तो डेफिनेटली ऑडिट के चीजों के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होती हैं सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। यानी अगर आप ये भी देखें, अगर आप हम ये चीज समझने की कोशिश करें कि किसी चीज की सुपरवाइजरी यानी किसी का ऊपर टॉप टू बॉटम में बड़ा रिव्यू होना कितना जरूरी है, वो आपको इस स्लाइड से इंशाल्लाह ताला अंदाजा होगा। पाकिस्तान के अंदर जो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट बैंक की तरफ से स्टेट बैंक शरिया बोर्ड समझ लें, जो इसको आजकल हम कहते हैं शरिया एडवाइजरी कमेटी, ये इस वक्त पूरे बैंक के अंदर जो जितनी भी रूल्स रेगुलेशन फ्रॉम शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आती हैं वो उसको मैनेज करता है, उसको सुपरवाइज करता है और गाइडेंस जो है वो इनसे शरिया बोर्ड से ली जाती है। स्टेट बैंक IFBD डिपार्टमेंट अपनी शरिया एडवाइजरी कमेटी के सामने जितने भी मसाइल होते हैं, इंडस्ट्री के टॉप लेवल मसाइल होते हैं, जैसे कन्वर्जन के मसाइल आ रहे हैं, वो अपनी शरिया एडवाइजरी कमेटी के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी सुपरवाइजरी के अंदर मैकेनिज्म के अंदर शरिया बोर्ड का किरदार है। किसी हर बैंक के अंदर स्टेट बैंक ने कहा है अपनी शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर कि हर बैंक के अंदर एक शरिया बोर्ड मौजूद हो और उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कितने शरिया बोर्ड मेंबर्स होंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। लेकिन एक कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कि शरिया बोर्ड का काम क्या है, वो हर उस बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपने एक इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड जो है वो फॉर्म करे और उसको एम्पावर करे कि वो सारी चीजों को देख सके, रिव्यू कर सके, चीजों को समझ सके। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ये भी हमारी एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म का एक पार्ट है, क्योंकि शरिया बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आपस में मिलते हैं, जिसकी शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट भी है साल में 2 दफा मिलने की, जिसमें शरिया बोर्ड अपने व्यूज शरिया कंप्लायंस के व्यूज के हवाले से अपने मसाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का काम ये है कि वो शरिया बोर्ड की जितनी भी गाइडेंस है उसको इम्प्लीमेंट कराए और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बाइंडिंग होती है। देन इंटर शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, जो कि शरिया बोर्ड का एक आर्म है, जिसमें शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट शरिया बोर्ड की सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराता है, शरिया बोर्ड की डायरेक्टिव्स को देखता है और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। शरिया कंप्लायंस के वेरियस रोल्स भी हैं, रिव्यू एंड एडवाइजरी है। देन इंटरनल शरिया ऑडिट फंक्शन, अगेन ये सेकंड आर्म है शरिया बोर्ड का, जिसमें शरिया बोर्ड इंटरनल ऑडिट फंक्शन से बहुत सारे काम लेते हैं। इंटरनल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट सारे बैंक का जो है वो ऑडिट परफॉर्म करती है, जिसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स का ऑडिट होता है, ब्रांचेस का ऑडिट होता है, हेड ऑफिस फंक्शन का ऑडिट होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी, ये सारे डिपार्टमेंट का ऑडिट किया जाता है। इंटरनल शरिया ऑडिट जो है वो शरिया बोर्ड से मुख्तलिफ असाइनमेंट भी शरिया बोर्ड की तरफ से उनको मिलते हैं, जैसे स्पेशल असाइनमेंट्स होते हैं, और कोई ऐसे असाइनमेंट जिसमें शरिया बोर्ड जिसमें चाहे कि शरिया कंप्लायंस जो है, शरिया ऑडिट जो है वो उसको परफॉर्म करे, तो वो इंटरनल शरिया ऑडिट भी उसको काम करता है। देन दूसरा सुपरवाइजरी हमारे पास आता है स्टेट बैंक की रेगुलेशन। जो स्टेट बैंक जो है वो मुख्तलिफ गाइडलाइंस, मुख्तलिफ चीजें जो है वो टाइम बाय टाइम इशू करता रहता है, जैसे कि पूल मैनेजमेंट की गाइडलाइन इशू की है। आपने देखा होगा 2019 के बाद से स्टेट बैंक ने IOP स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए हैं और अब तक तकरीबन 45 स्टैंडर्ड स्टेट बैंक अडॉप्ट कर चुका है, जिससे आपकी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म, आपकी गाइडलाइंस, आपका स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हो रहा है। देन लास्ट जो हमारे पास आती है चीज, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट और इंस्पेक्शन, SBP इंस्पेक्शन। नाउ अब हम मूव करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि होपफुली आपको आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट कैसे
जो जर्नी है ऑडिट का वो कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरह जो है वो हम इवॉल्व करते हैं। अगर क्या हम देखा जाए कि क्या ऑडिट आज के दौर का नाम है, अगर हम बहुत पुराने जमाने से चीजों को देखें और समझें तो हमें ये समझ में आता है कि ऑडिट तो सिर्फ एक लफ्ज है, लेकिन असल है अकाउंटेबिलिटी का। अगर हम इस्लाम देखें, कुरान और सुन्नत से भी हम इस चीज को देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो सजा और जजा का जिक्र है। तो डेफिनेटली किसी ने अगर कोई चीज गलत परफॉर्म की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, और अगर किसी ने कोई अच्छी चीज की उसको उसका जजा मिलेगा। लेकिन हम अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑडिट की जर्नी स्टार्ट होती है प्री 18 सेंचुरी से। अगर हम उसके बारे में बात करें कि पहली दफा किस तरह ऑडिट का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये सबसे पहले जो है शुरू हुआ कि आपको अगर याद हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें उनको ख्वाब आया था और उसके अंदर जो है वो उन्होंने गल्ला जमा करने की मैकेनिज्म उस जमाने से, यानी फिरौन के जमाने से जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ। जिसे कहते हैं कि जो इजिप्ट और बेबीलोन्स के जमाने में, इजिप्ट के जमाने में क्या होता था कि जब टैक्सेशन के लिए और इसके साथ साथ जो फूड की कलेक्शन थी उसके हवाले से जो है वो ऑडिट परफॉर्म होता था। और एक बहुत सिंपल रूल था कि उनका काम उनका सिंपल काम क्या था कि डिडक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ एरर, यानी कहीं गलती हो गई, उसको किसी को ज्यादा दे दिया टैक्स, किसी से जो है वो कम कलेक्ट किया, या किसी ने टैक्स नहीं दिया, वो उस चीज के मैकेनिज्म को जो है वो इस जमाने में देखा जाता था। देन और उनका जो कोर जो मकसद था, वो सिंपल मकसद ये था कि वो हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते थे वहां के जो लोग थे। देन उसके बाद शुरू हुआ मॉडर्न एज शुरू हुआ 18 सेंचुरी में, 18 टू 19 सेंचुरी के दरमियान जो है वो एक दौर शुरू हुआ, जिसे हम कह सकते हैं बर्थ ऑफ ऑडिट क्या जो है वो सही मायनों में जो वजूद उस वक्त शुरू हुआ। वजूद इस तरह शुरू हुआ कि सबसे पहले जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो 18 सेंचुरीज में जो है वो उसका कानून बना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। अच्छा, आपको ये पता है कि कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो डेफिनेटली वो चाहता है कि मेरी जो है फाइनेंसिंग या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड हो। तो उस वक्त प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया, जिसमें जो वर्ड है आपने देखा होगा ना, ऑडिटर जो वर्ड है ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, जिसके मायने जिसको जिसको लैटिन जबान में कहते हैं ऑड हेयर, यानी टू हेयर, टू सुनना। ऑड हेयर इज अ लैटिन वर्ड, जो जिसको बाद में वर्ड आहिस्ते आहिस्ते आपको पता है लफ्ज चेंज हो जाते हैं तो ऑडिट के नाम से बन गया, जैसे ऑडिटर भी कहते हैं। जैसे जो है ऑड हेयर, जो लैटिन वर्ड है वो ऑड हेयर है, तो इसका मतलब है सुनना। उस जमाने में होता क्या था, जब जब पब्लिश होते थे फाइनेंशियल्स, तो वो ये करते थे कि ऑड हेयर वो सिर्फ सुनते थे फाइनेंशियल्स को, और उसके मुताबिक वो जो है वो चीजें आगे अपने प्रेजेंट करते थे कि नहीं जी ये जो चीज है सारी चीजें इसके मुताबिक हैं, सही है या नहीं है, वो इस मैकेनिज्म को वो समझते थे। देन उसके बाद जो 18 सेंचुरी के अंदर ही 1844 में ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक एक्ट आया, जो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने फाइनेंशियल्स पब्लिश करने की बात की, जिसे हम आज के दौर में बैलेंस शीट कहते हैं। फिर 1954 के अंदर जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो है वो बनी, और फिर उसके बाद 1900 में जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, जिसमें पहली दफा जो है वो ये चीज तय की गई कि जो है वो लफ्ज आपको याद हो ऑडिट के अंदर यूज होता है ट्रू एंड फेयर, ये पहली दफा आया। फिर उसके बाद 19 सेंचुरी के अंदर जो रिवोल्यूशन हमारे पास आया, वो एक्सटर्नल ऑडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने के अंदर ये हुआ कि जिस वक्त फाइनेंशियल पब्लिश होते थे तो ये होता था कि यार कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा हो जो कि हमारी चीजों को सही तरीके से वेरीफाई कर सके, ताकि हम इसको प्रेजेंट करें और उसमें फाइनेंसिंग कर सकें। तो 19 सेंचुरी के अंदर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आया, जो कि शेयर होल्डर्स की डिमांड पे आया। फिर उसके बाद 1930 के अंदर जो है वो जो
मार्केट थी उसकी यूएस मार्केट की तो क्रैश हुआ, जिसकी वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम आए और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑडिट का जो ऑडिट है वो स्टैंडर्डाइज होना शुरू हुआ और सारे इसके ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड बनने शुरू हुए। पहली दफा स्टैंडर्डाइजेशन 1939 के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑडिट हुआ। उसके बाद 1941 में पहली दफा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट जिसे आईआईए कहते हैं वो वजूद में आया। फिर 1947 में पहली दफा जो है वो एक गाइडेंस इशू की गई जो कि बहुत ही नॉमिनल बहुत ही छोटी सी एक गाइडेंस थी ऑडिट के हवाले से। ये इशू की गई 1947 में। देन 1978 में पहली दफा प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑडिट का आया। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो अर्ली सेंचुरीज के अंदर जैसे मैंने भी पहले बताया कि इसमें बहुत सारे ऑडिट की चीजें गाइडेंस हैं, रेगुलेटरी एक गाइडेंस शुरू हो गई थी जिसमें इंटरनल कंट्रोल और ग्रोथ और एफिशिएंसी की बात शुरू हुई। उसके बाद मॉडर्न दौर आया हमारे पास। मॉडर्न दौर के अंदर कुछ बड़े इंसिडेंट हुए जिसमें ऑडिट की चीजें जो है वो इवॉल्व होनी शुरू हुई। जैसे कि आप बहुत मशहूर जमाना वाकया है एनरॉन का, जिसमें एनरॉन ने 60 बिलियन की बैंक्रप्सी फाइल की। उसके बाद जो है वो ऑडिट था वर्ल्ड कॉम का जो है इंसिडेंट पेश आया जिसके अंदर जो है वो तकरीबन उसने 11 बिलियन की बैंक्रप्सी फाइल की। इन सारे बड़े फ्रॉड के बाद जो है वो एक कानून नाफिज हुआ, एक कानून से कहते हैं एक्ट आया, इसे सॉक्स जो है वो का एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के बाद ये कंपलसरी हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी जो सॉरी सीएफओ और सीईओ ये अपने फाइनेंशियल साइन करेंगे एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिगर्स। इस कानून के बाद बहुत मेजर जो है वो फाइनेंशियल में रेवोल्यूशन आई और चीजें बहुत तेजी से जो है वो आगे मूव हुई, कानून बने, अकाउंटेबिलिटी हुई। इसी तरह बहुत सारे जो है वो जो फ्रॉड होने वाले थे वो प्रिवेंट हुए, एक्सटर्नल ऑडिट स्ट्रेंथ हुआ, इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट और मजबूत हुआ और मुख्तलिफ चीजें इसी तरह आती रही। इसी तरह टाइम बाय टाइम इंटरनल ऑडिट जो है वो उन्होंने आईआईए ने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स जो है वो जारी करने शुरू किए। देन फ्यूचर हमारा क्या है? फ्यूचर हमारा ये है कि हम मुख्तलिफ हम आपने खुद देखा होगा आज के दौर के अंदर जो है वो जो ऑडिट चल रहा है वो किस तरह का ऑडिट है। वो ऑडिट चल रहा है, एआई का ऑडिट चल रहा है, एजाइल ऑडिटिंग है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑडिट है, डेटा एनालिस्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पावर बीआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो फ्यूचर हमारा ऑडिट का वो सारा का सारा हमारा सिस्टम बेस्ड ऑडिट है। बहुत सारी इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर तो शायद मेरे ख्याल से चंद एक ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो है वो एआई की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन बाहर अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पावर बीआई, डेटा एनालिस्ट और मुख्तलिफ टूल्स जो है वो ऑडिट के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक छोटी सी जो है वो एवोल्यूशन थी, जो ऑडिट जर्नी थी वो मैंने कोशिश की आपको बताने की। देन अब हम अगले जो टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो हम ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की तरफ। इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, कितने काम इंटरनल ऑडिट करता है। अच्छा, ये जो इंटरनल ऑडिट है ये तकरीबन शरिया ऑडिट भी इसी तरह ही काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि पहला मैंने टॉप पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन। सेम इंटरनल शरिया ऑडिट भी प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट जो है वो ओपिनियन देता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है। वेरियस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर, मुख्तलिफ किस्म की फ्रॉड के हवाले से इन्वेस्टिगेशन होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है। सेम शरिया ऑडिट भी इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट की जाती है। लेट सपोज शरिया बोर्ड ने कोई गाइडेंस दी है जिसकी इंटरनल शरिया ऑडिट जो है वो परफॉर्म करता है कंप्लायंस के, वेदर ये प्रोसेस फ्लो एज पर द गाइडलाइंस शरिया है या नहीं है, या मुख्तलिफ चीजें। सेम इंटरनल ऑडिट भी कंप्लायंस फंक्शन प्रोवाइड करता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल पॉलिसीज की कंप्लायंस होती है। रिव्यू ऑफ कंट्रोल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। Internal audit and Sharia audit both are reviewing control process and procedure. इसमें अगर किसी किस्म की कोई गैप आपको आइडेंटिफाई होता है तो वो इंटरनल शरिया ऑडिट एंड ऑडिट जो है वो मैनेजमेंट को बताता है कि इसके अंदर ये प्रोसेस गैप है, ये चीज जो है वो इसमें है, ये इसमें नहीं है। ये प्रॉपर एक तरीके से पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करता है। देन adding value to provide the independent assurance.
शरिया ऑडिट आज का जो शरिया ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है, वो पहले जमाने के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट है। पहले जमाने में जो ऑडिट परफॉर्म होते थे, वो ऑडिट होते थे सिंपल के जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, वो आपने वायलेशन आपने नोट की और ऑडिट की रिपोर्ट बन गई। पहले जमाने के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि रजिस्टर्स में काम हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर का दौर आया, फिर जो पॉलिसी प्रोसीजर की वायलेशंस होती वो नोट कर ली गई। लेकिन अब ऑडिट आहिस्ते आहिस्ते जो है वो इवॉल्व हो रहा है। ऑडिट का काम अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि आपने पॉलिसीज की जो है वो नॉन कंप्लायंस है, बल्कि अब ऑडिट का काम ये हो गया है कि वो वैल्यू एडिशन करे, ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करने में, उसकी ग्रोथ में वैल्यू एडिशन करे। वैल्यू एडिशन से क्या मुराद है? वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि अगर कोई गैप, कोई ऐसी चीज जो आपको नजर आ रही है कि आपने, जैसे मैंने बताया था ना ऑडिट का मैंने लिसन, सुनना, तो उसने कहीं सुना कि यार ये फ्रॉड होने वाला है या फ्रॉड इस तरह की साइबर सिक्योरिटी चल, वो मैनेजमेंट को आप बताएं कि भाई मैनेजमेंट के अंदर ये इस तरह की प्रिवेंट जो है वो आप ली जा सकते हैं। सेम इसी तरह कि अगर कोई पॉलिसी प्रोसीजर बन रहा है और उसके अंदर कोई कंट्रोल गैप मिसिंग है, तो वो उसको हाईलाइट करे कि यार ये कंट्रोल आपने जो है वो उसके अंदर ऐड कर लेना है। जैसे आजकल आपको पता है कि डिजिटल दौर है, इसी तरह डिजिटल साइबर जो है वो सिक्योरिटी, साइबर हमले बहुत हो रहे हैं, बैंकों के जो है वो हैक्स हो रहे हैं, अकाउंट जो है वो निकल रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो ऑडिट टीम है, ऑडिट फंक्शन है, वो बैंक को पॉलिसी बनाते हुए पॉलिसी स्टेज के ऊपर ही गाइड कर सकती है कि इस तरह के आपने इश्यूज या इस तरह की कंट्रोल प्लेस करने हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉडलेंट को या शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क को मिटिगेट करे, कम से कम उसको करे। देन एडवाइजरी जो है वो एडवाइजरी तो मैनेजमेंट सेम इसी तरह, जैसे आपने ने वैल्यू एडिशन की बात की, तो सेम भी एडवाइजरी भी की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा था कि अभी बीच में जो है फ्लड्स आए बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, तो एक एडवाइजरी टू द मैनेजमेंट है कि आप अपनी जब फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं या आप किसी को अपना जो है वो मुस्तस्ना या कोई प्रोडक्ट आप ऑफर करने जा रहे हैं, या इवन कन्वेंशनल की बात करते हैं कि लोन देने जा रहे हैं, तो आप ऐसे इलाके में या ऐसी जगह अपनी फाइनेंसिंग को या अपने लोन को या अपनी एडवांसेस को ना प्लेस करें जहां पे इसके डिफॉल्ट होने का खतरा ज्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंटीरियर एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो है वो सैलाब आए और बहुत सारी चीजें तबाह हो गई, तो एग्री काफी आपका नुकसान हुआ। तो आप अपनी एग्री की फाइनेंसिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी रिस्क एंड कंट्रोल जो है वो मैनेज हो। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट वो ये है कि क्वालिटी, कि आपकी अपनी रिव्यू रिपोर्ट, सेल्फ असेसमेंट, आपकी अपनी रिव्यू रिपोर्ट को आपने कैसे देखा, किस तरह देखा, कैसी चीजें देखी, उसमें एविडेंस है या नहीं। तो ये ऑडिट जो है वो अपना ये फंक्शन इस तरह परफॉर्म करता है। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का रोल क्या है? इंटरनल ऑडिट का रोल सिंपल ये है कि टू इंटरनल ऑडिट इज रिस्पॉन्सिबल टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, गवर्नेंस एंड प्रोसेस। इंटरनल ऑडिट का सिंपल जो मकसद है, सिंपल ये मकसद है कि रिस्क मैनेजमेंट की एफिशिएंसी हो, कंट्रोल और गैप, जो गवर्नेंस प्रोसेस हो वो इम्प्लीमेंटेड हो, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस हो, यानी जो भी आपकी पॉलिसीज हो, प्रोसीजर्स हो, उसमें किसी किस्म की लीकेज ऑफ इनकम, फ्रॉडलेंट ना हो, वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहा हो। रिलायंस ऑन रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो उसकी रिलायंस हो, कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन, जो स्टेट बैंक की तरफ से गाइडलाइंस आई है, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक जो है वो काम करे और सारी उसकी कंप्लायंस। इंटरनल ऑडिट में आल्सो इन्वॉल्व इंक्लूडिंग ऑफ fraud investigation to identify the fraudulent act and conduct post audit, post investigation fraud audit, identify, control, breaking and establish फाइनेंशियल लॉस, यानी फाइनेंशियल लॉस को रोकने के लिए भी इंटरनल ऑडिट जो काम करता है। सेम इसी तरह इंटरनल शरिया ऑडिट इंडिपेंडेंट फंक्शन है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल शरिया ऑडिट की तो शरिया प्रिंसिपल को एडहर करना,
जो कि शरिया बोर्ड की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से या बैंक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो आए हुए हो, उसको एडर करना, उसको कंप्लाई करना इंटरनल शरिया ऑडिट की जिम्मेदारी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल शरिया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? An adequate governance structure and framework is in place and should be in line with the principle. तो पहला ऑब्जेक्टिव इंटरनल शरिया ऑडिट का क्या है कि किसी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नेंस फ्रेमवर्क चल रहा है उसको शरिया वो मौजूद हो और वो शरिया कंप्लाइंट हो और शरिया प्रिंसिपल के मुताबिक हो। Adequate internal Sharia control and have a desire and implementation of management to avoid Sharia non-compliances. एक एडिक्वेट इंटरनल शरिया कंट्रोल मौजूद हो जो कि मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करे ताकि शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क को अवॉइड किया जा सके। शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क को अवॉइड इस वजह से करना जरूरी है क्योंकि ये वो मसले हैं जिसके अंदर चंद चीजें आती हैं, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन रिस्क है। शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क सिर्फ और सिर्फ लीकेज या चैरिटी करा देना नहीं है कि आपने चैरिटी करा दी जो है वो तो शरिया नॉन कंप्लायंस अवॉइड हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट उसकी रेपुटेशन भी होती है। एक ऐसा बैंक जिसके अंदर इंटरनल शरिया कंट्रोल इतने अच्छे मौजूद ना हो तो उसका रेपुटेशन रिस्क बहुत ज्यादा स्टेक पे होता है। बहुत सारी चीजें जो कि पब्लिक होती हैं, आपने अगर टर्मिनोलॉजीज का सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया या आपने मार्केटिंग मटेरियल कुछ इस तरह के यूज किए जो कि एज पर द टर्म्स या एज पर द शरिया गाइडलाइंस नहीं है, तो ये रेपुटेशनल रिस्क होती है। तो सिर्फ और सिर्फ लीकेज ऑफ इनकम या चैरिटी करा देना ही जो है वो शरिया ऑडिट की डोमेन नहीं। शरिया ऑडिट की इस तरह के अलावा और भी बहुत सारी चीजों के अंदर आती है। नॉन कंप्लायंस रिस्क है, पूल मैनेजमेंट है। पूल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि आपने अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं किया, आपने अगर अपने रेलेवेंट जो आपकी जो डिपॉजिटर होल्डर हैं उसका आपने सही तरीके से प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जैसे स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली गाइडेंस मिनिमम डिपॉजिट रेशियो की निकाली है, तो मिनिमम डिपॉजिट रेशियो के मुताबिक आपने डिपॉजिट को अपने पैसे देना है और उसका आपको चेक रखना है। तो ये भी शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क है कि अगर आपने सही तरीके से डिपॉजिटर को पैसे नहीं दिए। रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया आपके पास मौजूद हो, वो चेक कर जो कि शरिया प्रिंसिपल के मुताबिक हो। इसी तरह आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज शरिया नॉन कंप्लायंसेस एंड प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस टू द शरिया बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथन द पब्लिक ट्रस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक का ट्रस्ट हो। आजकल बहुत सारे जो है ना वो बैंक के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है कि यार ये बैंक बिल्कुल सही है, एबीसी बैंक या फलां इसमें ऐसी चीज है जिसमें ये चीज बिल्कुल सही है। जी मैडम कुछ आप कहना चाह रही हैं? Yes, sir. Sir, people are requesting कि screen full नहीं उनको नजर आ रहा। फुल नजर नहीं आ रहा? जी, आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है। अच्छा मैं एक मिनट। आप शेयर कर सकती हैं स्क्रीन दोबारा से? सर मुझे फिर लॉग आउट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए अभी आ रहे हैं यस, नजर? नाउ इट्स सर, इसमें अब आप इसको एक्सपैंड कर दें। यस, योर प्रेजेंटेशन को एक्सपैंड कर दें, नॉट लाइक दिस सर। वो एक्सपेंशन का एक हमारा होता है कॉर्नर पे, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। एक मिनट। स्लाइड कंट्रोल अभी अभी नजर आ रही? Yes, sir. We'll share it later on with the, if you allow, then we can share it with our, श्योर, participants. बिल्कुल Thank बिल्कुल you. बिल्कुल आप Thank शेयर कर, बिल्कुल शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी क्लियर है? ये Oh. स्क्रीन फुल का मैंने की है, अभी क्लियर है? Clear, sir. It's okay. ठीक, Thank you, sir. Please carry on. थैंक यू। नेक्स्ट हम अपनी अपनी स्लाइड की तरफ मूव होते हैं। ब्रॉडर स्कोप ऑफ इंटरनल शरिया ऑडिट। ब्रॉडर स्कोप
ऑफ इंटरनल शरिया ऑडिट, जो इंटरनल शरिया ऑडिट किस चीज को देखता है अपने ऑडिट परफॉर्म करते हुए। रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल वर्कफ्लो। इंटरनल शरिया ऑडिट हमेशा से जो है वो ट्रांजिशन बेस्ड शरिया ऑडिट है। इस जैसे मुख्तलिफ ऑडिट होते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट है, ब्रांच ऑडिट है, मुख्तलिफ ऑडिट के और फंक्शंस हैं, बिजनेस रिस्क रिव्यू इसमें, BRR है, क्रेडिट रिव्यू जिसे क्रेडिट रिव्यू कहते हैं। ये ट्रांजिशन वाइज नहीं देखते, लेकिन इंटरनल शरिया ऑडिट क्योंकि उसका काम मेन प्योरिफिकेशन है, इन केस एक ट्रांजिशन भी जो है वो शरिया नॉन कंप्लाइंट होती है तो वो अकाउंटेबल होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर होता यह है कि रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया जाता है, प्रोडक्ट प्रोग्राम्स रिव्यू किए जाते हैं, और ऑपरेशन वर्कफ्लो को शरिया ऑडिट इसको देखता है। रिव्यू ऑफ फाइनेंसिंग, डिपॉजिट, ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट से अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पूल मैनेजमेंट का ऑडिट स्टेट बैंक की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस इशू हुई है कि पूल मैनेजमेंट का जो है वो ऑडिट क्वार्टरली बेसिस पे किया जाएगा। उसकी क्या वजह है? उसकी सिंपल वजह ये है कि आपके जो डिपॉजिटर है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए शरिया ऑडिट को बाकायदा जो है वो एक एडवाइस स्टेट बैंक की तरफ से है कि क्वार्टरली आप अपने पूल मैनेजमेंट का ऑडिट करें। इसी तरह ट्रेजरी और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन का शरिया ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। रिव्यू ऑफ प्रॉफिट एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैरिटी, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसएनसी एनएसएस। इनकम प्यूरिफिकेशन से मुराद ये कि जो ट्रांजिशन जो ऐसी शेयर्स हैं जो कि डिविडेंड आती है। आपको ये बात पता होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी जो है उसको डिविडेंड देती है। इसी तरह बैंक भी है, ट्रेजरी भी है, वो अपने शेयर्स परचेज करते हैं, तो डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। उस डिविडेंड इनकम को प्यूरिफिकेशन का भी ऑडिट होता है कि जो भी ऐसी शरिया नॉन कंप्लाइंट जो है वो इनकम बैंक रिसीव कर चुका होता है, वो उनके डिविडेंड को जो है वो उनके डिविडेंड जो है वो प्यूरिफाई करते हैं, उसको चैरिटी किया जाता है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि उसको चैरिटी किया जाए। इस पे आईओफी ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसके मुताबिक जो है वो डिविडेंड इनकम प्यूरिफाई किया जाए। इसी तरह हर बोर्ड उसके अंदर अपने हिसाब से जो है वो कोई तब्दीली करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस बैंक के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी तरह ब्रांच रिव्यू, इंटरनल शरिया ऑडिट जो है वो ब्रांच रिव्यू भी परफॉर्म करती है। ब्रांच रिव्यू के अंदर मुख्तलिफ बहुत सारी चीजें ब्रांच की चीजें आती हैं, जिसके अंदर जो है वो नॉलेज टेस्टिंग है, स्टेट बैंक की गाइडेंस, उसकी कंप्लाइंस चेक की जाती है, टर्म डिपॉजिट क्या जो है वो रिव्यू ऑडिट होता है, स्पेशल जो है वो डिपॉजिट होता है उनका रिव्यू किया जाता है। फिर उसके साथ साथ कस्टमर फेसिंग प्रोसेस, यानी कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है कि और आंसर ये पूछा जाता है कि क्या जो आपको गाइडेंस दी गई है, जो आपको बताया गया है, या आपकी बैंक के बारे में या आपकी इस्लामी बैंकिंग के बारे में क्या आपकी नॉलेज है, आप क्या समझते हैं। तो ये मुख्तलिफ कस्टमर से डिस्कशन होती है ऑडिटर्स की, और उसके मुताबिक जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इंटरनल शरिया ऑडिट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला जो प्रोसेस है इंटरनल शरिया ऑडिट का, वो उसकी बेसिस है। बेसिस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट वैल्यूज, उनकी वैल्यूज को सबसे पहले समझना है। फिर उसके बाद IAA, इंटरनेशनल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड, और शरिया ऑडिट स्टैंडर्ड, उनको समझना है। उसके मुताबिक ऑडिट का एक चार्टर होता है। हर डिपार्टमेंट, हर बैंक के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट का एक चार्टर होता है और एक मैनुअल होता है, उसके मुताबिक काम करना। देन फिर स्ट्रेटजी, प्लान डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रेटजी बनाने का काम होता है। देन प्लानिंग, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। फिर आपने ये समझना होता है कि ऑडिट परफॉर्म कैसे करना है, उसके रिस्क आउट, जो रिस्क है उसको रिस्क असेस करना है। मुख्तलिफ, आप हर डिपार्टमेंट का अगर ऑडिट करने जा रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट का रिस्क अलग है। लेट सपोज अगर आप कॉर्पोरेट का ऑडिट करने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, तो उनके उसका रिस्क, उसके डायनेमिक्स अलग है। आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ऑडिट करने जा रहे हैं तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ऑडिट बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट से किया जाता है। फिर फिर उसके बाद उसकी रिस्क असेसमेंट आपने कर ली, देन फिर आप ऑडिट प्लानिंग करेंगे।
प्लानिंग मुकम्मल करने के बाद आप ऑडिट परफॉर्म करने से पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर सारी एक-एक चीज जो प्रोसेस फ्लो, गाइडलाइन, पॉलिसी है, जहाँ-जहाँ नॉन कंप्लायंस हो सकता है, वो आप पूरा एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे। देन आप फिर स्टार्ट करेंगे अपना फील्ड वर्क। फील्ड वर्क का मतलब ये कि अब आप मैदान में उतर गए, अब आपने जंग लड़नी है। फील्ड वर्क का मतलब ये कि आपने अपना ऑडिट अब परफॉर्म करना है। ऑडिट परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आप जो है वो अपनी रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। अपनी एरिया पहले देखेंगे, आपका कौन-सा एरिया अंडरस्टैंड करना है। अपने एरिया को जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट है, ट्रेज़री है, उनके पूरे किस फील्ड में। अब कॉर्पोरेट के अंदर अलग-अलग डिवीज़न है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट है, फिर इसके अंदर मज़ीद चीज़ें। इसी तरह ट्रेज़री है, ट्रेज़री के अंदर आपने कैपिटल मार्केट देखना है, ट्रेज़री के अंदर आपने मनी मार्केट देखना है, ट्रेज़री के अंदर आपने इक्विटी मार्केट देखना है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है अपने एरिया को। देन फिर आपने अप्रोच यानी से आपने रिसोर्स एलोकेशन किया आपने, देन फिर आपने रिस्क एरिया जो रिस्की एरियाज़ है उनको डिफाइन किया। जैसे कि कॉर्पोरेट के अंदर आपने डिफाइन किया कि यार ये मेरी मुराबा है, ये प्रोडक्ट है, इसको देखना है मैंने ज़रूर। ये इसकी मुझे ना ज़रूरी इसको देखना है। इसी तरह ट्रेज़री के अंदर है तो मैं ट्रेज़री के अंदर वो ट्रांज़ैक्शंस देखूँ जिसके अंदर शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क ज़्यादा है। जैसे आपकी बाय मॉड्यूल की ट्रांज़ैक्शन अगर हो रही है तो वो सही तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेल परचेज़ हो रही है, नहीं हो रही, उनकी ट्रांज़ैक्शन को देखूँ। इसी तरह इन्हीं रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करते हुए आप अपना सैंपल परफ़ॉर्म करते हैं। सैंपल परफ़ॉर्म करने के बाद अब आपने अब जो है ना वो जंगी मैदान में कूद पड़े हैं अब आप। और आपने जो है वो आपने अपना काम शुरू कर दिया। अब आपने सारी ऑडिट ऑब्जर्वेशन सारी चीज़ें आपने बनानी शुरू कर दी, फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। देन फिर आप रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपने अपने मेजर इश्यूज आइडेंटिफाई किए, आपने इसको जॉट डाउन किया, उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में पर डाला, अपनी रिकमेंडेशन डाली। आपने जब इश्यूज हाइलाइट कर लिए, तो इश्यूज हाइलाइट करने के बाद आपने इसकी इम्प्लीकेशन भी बतानी है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने एक मुराहबा की ट्रांज़ैक्शन देखी और मुराहबा के अंदर आपको ये महसूस हुआ कि यार ये ट्रांज़ैक्शन तो बायबैक की है, जिसे बैइना कहते हैं हम। बैइना की ट्रांज़िशन है या बै कब्ज़ अल-क़ब्ज़ की ट्रांज़िशन है यानी पहले कब्ज़ा लेने से पहले की एसेट है या एसेट आपका कंज़्यूम हो चुका, आपने इस ट्रांज़िशन तो फिर आप उसकी इम्प्लीकेशन भी बताएँगे कि ये इसकी वजह क्या हो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मे द इनकम मे बी रेफर टू शरिया बोर्ड फॉर चैरिटी पर्पज़ इस तरह करके आपने देन रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन का मतलब ये कि आप ये बताएँगे कि ये ट्रांज़िशन के अंदर जो मसाइल आए हैं, उसकी क्या वजह है और उसको कैसे आप उसको ब्रिज आउट कर सकते हैं। जैसे के तौर पे कि अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर है, कोई ऐसा बंदा है या क्रेडिट एडमिन है, इसके अंदर आप उनकी एजुकेशन को, शरिया की नॉलेज को या उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें और उसको चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। देन मैनेजमेंट कमेंट्स लिए जाएँगे। मैनेजमेंट का क्या व्यू है कि आपके इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मैनेजमेंट क्या कहती है? मैनेजमेंट ये कहती है कि नहीं ये ट्रांज़िशन जो है वो उसमें मसले-मसाइल थे, नहीं आप सही कह रहे हैं। तो मैनेजमेंट का कमेंट लेना ज़रूरी ताकि ये पता लगे उसको कि ये जो गलती आई है, ये क्यों आई है? बाज़ दफ़ा देखिए ऑडिटर अक्ल कुल तो होता नहीं है। उस उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो हो सकता है चीज़ें ना हो तो मैनेजमेंट आपको ये बताएगी नहीं आपने जो अंडरस्टैंड किया है वो अंडरस्टैंड ऐसा नहीं, ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप ऐसे देख सकते हैं। तो हो सकता है कि वो उसको फैक्चुअल एक्यूरेसी भी कहते हैं, कि आप अपनी रिपोर्ट इश्यू करने से पहले, इसे ड्राफ्ट रिपोर्ट कहते हैं, इश्यू करने से पहले फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए मैनेजमेंट के पास भेजते हैं और आप अपनी मैनेजमेंट के साथ फैक्चुअल एक्यूरेसी को फाइनलाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट लेके देन एक्शन पॉइंट। अगर कोई इस दौरान आपको महसूस हो गया है ट्रांज़िशन शरिया नॉन कंप्लायंट है तो ये आप रेफर कर देंगे शरिया कंप्लायंस की तरफ, आरएसबीएम की तरफ एंड देन मूव टू शरिया बोर्ड। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शुरू होती है वो होती है फ़ॉलो अप मैकेनिज़्म। अब सब आपके रिज़ॉल्यूशन आ गई, क्लोज़र आ गया। अब आपने अपनी जो आपने मैनेजमेंट ने टाइमलाइन आपको दी थी, उस टाइमलाइन के मुताबिक आपने चीज़ों को क्लोज़ करना है और उसका फ़ॉलो अप करना होगा। देन शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हवाले से हम शरिया ऑडिट के कुछ रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज़ देख लें। रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ शरिया ऑडिट की क्या है सिंपल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल शरिया ऑडिट होना चाहिए जैसे कि मैंने अपनी
सेशन शुरू होने से थोड़ा सा पहले ये बताया था कि इंटरनल और शरिया ऑडिट हर बैंक के अंदर होना जरूरी है, चाहे वो रिपोर्ट कर रहा हो CIO को यानी इंटरनल शरिया ऑडिट हेड को, या वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करे बैंक को। इसी तरह इंटरनल शरिया ऑडिट का स्टाफ एडिक्वेट हो एज पर द एडवाइस बाय द शरिया बोर्ड। शरिया बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन भी होती है कि इंटरनल शरिया ऑडिट का स्टाफ एडिक्वेट हो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से संभाल सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 800 850 ब्रांचेस हैं, और अगर वो उसके शरिया ऑडिट मेंबर सिर्फ 2 या 3 है तो वो अनएडिक्वेट है। कैसे पॉसिबल है कि वो 800 900 ब्रांचेस के बंदे को जो है वो संभाल सके? तो डेफिनेटली शरिया बोर्ड उसके मुताबिक एडवाइस करता है कि आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें और एडिक्वेट रिसोर्सेज हायर करें। इसी तरह इंटरनल शरिया ऑडिट के अंदर ये जरूरी है कि वो जो ऑडिटर हो वो क्वालिफाइड इनफ हो कि वो और वेल ट्रेन हो कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से निभा सके और संभाल सके और कर सके। क्योंकि देखिए शरिया ऑडिट का जो काम है वो एक डिफरेंट किस्म का काम है। उसमें जितने भी उलमा इकराम हैं वो उनकी मौजूदगी होती है। इंटरनल शरिया ऑडिट एक फंक्शन डिफरेंट ऑडिट से इस वजह से भी है कि उसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती है कि जो आम जो लेन देन के मामला हैं उसको समझना, जिसे फिक्र कहते हैं, फिकही मामला काफी इसके अंदर आते हैं। तो डेफिनेटली इंटरनल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हों वो फिक्र के या मामलात के जो मैटर है उसको अच्छी तरीके से समझते हो, तभी वो इस डिपार्टमेंट का या इस फंक्शन का हक अदा कर सकेंगे। इसलिए स्टेट बैंक ने 2018 के सर्कुलर के अंदर इस बात को इंश्योर कराया था कि हर डिपार्टमेंट के अंदर उलमा इकराम मौजूद हो, जिसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू की थी स्टेट बैंक ने। उसको उसके मुताबिक जो है वो शरिया ऑडिट परफॉर्म हो। इसी तरह शरिया कंप्लाइंस में भी लिखा था, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में भी लिखा था। तो हर जगह शरिया स्टेट बैंक ने शरिया स्कॉलर्स को जो है वो अपॉइंट कराया। देन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ये समझने वाली बात है वो ये कि इंटरनल शरिया ऑडिट स्टाफ वो एडिक्वेटली जो जो वो सिर्फ डेडिकेटली शरिया ऑडिट फंक्शन के लिए काम करेंगे। ऐसी पहले टाइम के अंदर जब शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क नहीं आया था तो उस वक्त इंटरनल शरिया ऑडिट का स्टाफ दूसरे काम भी परफॉर्म करता था, जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट के साथ कनेक्ट हो गया, ब्रांच के साथ कनेक्ट हो गया, या क्रेडिट रिस्क के साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन स्टेट बैंक की इस गाइडेंस के बाद, और आज भी स्टेट बैंक की जो लेटेस्ट गाइडेंस उसके अंदर ही क्लियरली बात लिखी हुई है कि इंटरनल शरिया ऑडिट का जो भी स्टाफ होगा वो डेडिकेटेड होगा इंटरनल शरिया ऑडिट के लिए। डेडिकेटेड से मुराद ये कि अगर इंटरनल शरिया ऑडिट का स्टाफ जो है वो कोई ब्रांच का काम परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा नहीं हो कि ब्रांच ऑडिट का टीम जो है वो शरिया ऑडिट परफॉर्म करके आ जाए। ये बाज दफा शेयरिंग के ऊपर काम होता है। उसमें होता क्या है, क्योंकि ब्रांच अब आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा ड्रिवन करती है। एक ब्रांच के अंदर अगर आपका जो है वो टीम जाती है। शिराज आपने रेज हैंड किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मदिया? So we have Q&A session at the end of your presentation. So I request everyone to kindly type your questions in the chat box. So please continue. ठीक, थैंक यू। तो कॉस्ट के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट ड्रिवन भी है डेफिनेटली। एक ही ब्रांच के अंदर एक ही बैंक से यानी दो बंदे जा रहे हैं, एक ब्रांच का भी जा रहा है, एक शरिया ऑडिट का भी जा रहा है, तो डेफिनेटली कॉस्ट को भी देखना होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हैंडशेक किया जाता है ब्रांच ऑडिट के साथ, वो अपनी चेकलिस्ट प्रॉपर बना के दे देते हैं, और शरिया ऑडिट की टीम भी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांच में जाती है और उसके मुताबिक जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। देन इसी तरह जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत शरिया ऑडिट के अंदर है वो अपनी मेथोडोलॉजी को, मैनुअल को, अपनी स्कोप को शरिया बोर्ड से जो है वो रिव्यू कराएगी और बैंक से अप्रूव कराएगी। देन हम अगली उसके कुछ और पॉइंट्स की तरफ अगर मूव करें तो उसमें इंटरनल शरिया ऑडिट जो है वो प्लान बनाता है, वो शरिया बोर्ड से रिव्यू कराएगा और बैंक से अप्रूव कराएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने
प्रीवियसली भी जिक्र किया था, स्टेट बैंक भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज करता है कि प्रॉफिट लॉस की जो ऑडिट है वो क्वार्टरली बेस के ऊपर ऑडिट होना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट जितनी भी है वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो शरिया बोर्ड को सबमिट होती है, फिर उसके बाद जो है वो उसके करेक्टिव एक्शंस और जो इन्फोर्समेंट है वो बोर्ड ऑडिट कमेटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। इस बात को जो है वो तो हमें मधु से कहा, तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि बाज दफा होता है ये कि शरिया बोर्ड से जो है वो कमेंट नहीं आते और फिर उसके बाद वो बैग के अंदर जाने होते हैं। तो शरिया बोर्ड के कमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरिया कंप्लायंस, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि हम सबसे पहले जो है वो शरिया बोर्ड की कमेंट्स लेंगे। शरिया बोर्ड के कमेंट्स लेने के बाद बोर्ड ऑडिट कमेटी के अंदर शरिया बोर्ड के कमेंट्स के साथ ऑब्जर्वेशन जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो बोर्ड ऑडिट कमेटी जो है वो उसके डायरेक्टिव्स को इंश्योर कराएगा। देन ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपके यहाँ पे मुकम्मल हुए। देन अगली जो चीज आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि शरिया ऑडिट जो है वो कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है शरिया कंप्लायंस इन्वायरमेंट को। शरिया ऑडिट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है शरिया कंप्लायंस को स्ट्रेंथन कराने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है वो ये है कि इंश्योर कंटिन्यूस एडहेरेंस ऑफ द शरिया रूल एंड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि हमने शुरू में अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये बात कही थी कि शरिया की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसको और जो स्टैंडर्ड स्टेट बैंक अडॉप्ट करता जा रहा है उस स्टैंडर्ड को हमें कंटिन्यूस जो है वो रिव्यू करना है और उसको कंप्लायंस कराना है और उसको एडहेरेंस करना है, ताकि हर तरीके की जो कंप्लायंस है, हर तरीके की इश्यूज है वो आपके उसके अंदर रिजॉल्व हो। Dedicate error, detect error, weaknesses and Sharia violation system systematically। यानी आपने वो errors डिटेक्ट करने हैं, वो weaknesses डिटेक्ट करनी है और शरिया वायलेशन जितनी भी हो रही हैं वो सब आपने डिटेक्ट करके उसको फिक्स आउट करना है, ताकि दोबारा से जो है वो सारी चीजें वजूद में ना आए। देखिए हम शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं किया सकता। एलिमिनेट हम इस वजह से नहीं कर सकते कि वक्तन फक्तन मुख्तलिफ चीजें आती रहती हैं, फिर हर बंदे का एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होता है। अल्लाह ताला ने हर बंदे का एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस दिया है, उसको समझने का दिया है। बाज दफा अंडरस्टैंडिंग किसी और तरीके से वो समझ रहा होता है वो बल्कि वो शरिया नॉन कंप्लायंस हो जाता है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है सिस्टम के थ्रू। सिस्टमैटिकली मुख्तलिफ चीजें उसको देखी जा सकती है। Provide independent assurance to the Sharia board and management। शरिया बोर्ड और मैनेजमेंट को इंटरनल शरिया ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट एश्योरेंस दे सकता है कि हर डिपार्टमेंट का कंट्रोल प्रोसेस उसका मौजूद है, सिस्टम सही काम कर रहा है, उसके अंदर चीजें सही मौजूद हैं। तो जब शरिया बोर्ड और मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिट अपनी एश्योरेंस, एक रीजनेबल एश्योरेंस शेयर करता है, उसे मैनेजमेंट का और शरिया ऑडिट का कॉन्फिडेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चौथे पॉइंट में लिखी हुई है वो ये है कि बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है। आपका अगर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड ऐसे होगा कि जो उसके फाइनेंशियल्स पब्लिश होते हैं उसके एनुअल्स में, उसमें वो डेफिनेटली पब्लिकली होते हैं। उसके अंदर शरिया बोर्ड अपने कमेंट्स लिखता है, शरिया बोर्ड क्लियर उसमें अपने उसके अंदर पब्लिश में ये लिखता है कि उसने शरिया ऑडिट की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी सारी चीजें करेक्टिव एक्शन शेयर किए हैं। सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट प्रोसेस। शरिया ऑडिट जैसे मैं बता चुका हूँ कि एडवाइजरी रोल के तहत काम करते हुए मुख्तलिफ चीजें जो है वो शेयर करता है और काम उसके ऊपर एसओपीज को डेवलप बनाने में करता है। एडवाइजरी सर्विसेज देता है ताकि अगर किसी नए प्रोडक्ट के अंदर कोई गैप हो, एडॉप्शन ऑफ शरिया स्टैंडर्ड वो देता है। उसके बाद कन्वेंशनल पोर्टफोलियो को कन्वर्ट करने के अंदर भी अपनी अपनी जो है वो खिदमत अंजाम देता है। आखिरी हम स्लाइड की तरफ मूव हो रहे हैं वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस ऑफ इंटरनल शरिया ऑडिट जो फेस कर रहा है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी
चैलेंजेस जो इस वक्त इंटरनेशनल शरिया ऑडिट फेस कर रहा है वो है शरिया नॉलेज के साथ साथ आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज के जो स्टाफ हैं या जो रिसोर्सेज हैं उसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। आपको ये पता है सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब ग्रो कन्वर्ट हो रही है कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ। हमारा जो विजन भी है कि हम इंशाल्लाह ताला 2028 तक जो है वो फुल फ्लैश इस्लामिक कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ऐसी सूरत के अंदर रिसोर्सेज बहुत स्केयर है, बहुत कम है रिसोर्सेज। वो ऐसी रिसोर्सेज जो कि इसकी शरिया बैकग्राउंड भी हो और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी हो। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो है ना वो ऐसी कैपेसिटी डेवलप की जाए जो कि इस मसले को हल कर सके। लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी, ये भी एक इशू है कि हर जगह एक डिफरेंट किस्म की जो है वो जो है वो चीजें चल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे स्टेट बैंक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड IOP स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहा है तो ये मसला भी आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स ऑफ शरिया कंप्लायंस प्रोडक्ट, शरिया कंप्लायंस प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शरिया स्ट्रक्चरिंग बढ़ रही होती है, ये भी शरिया ऑडिट के लिए काफी चैलेंज होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो वो चीज डिस्कस होती है, शरिया स्ट्रक्चर बने जाते हैं, उसकी कंप्लायंस को देखना वो ये भी एक काफी चैलेंज है। एक और बहुत बड़ी चैलेंज है शरिया ऑडिट को फेस है वो लेक ऑफ इस्लामिक बैंकिंग नॉलेज जनरल पब्लिक। जैसे मैंने बात की थी कि ट्रस्ट डेवलप करना बहुत है। अब आवाम जितनी भी है वो हमारी आवाम को इतनी ज्यादा इस्लामिक बैंकिंग की अवेयरनेस नहीं है। तो ये भी जो है वो एक चैलेंज प्रोसेस शरिया ऑडिट के लिए है कि जनरल पब्लिक को हम कैसे इसको हैंडल करें। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है मैनेजमेंट एटीट्यूड एंड सपोर्ट। मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के दौर के अंदर जो है वो मैनेजमेंट अब इस बात को अंदाजा कर रही है कि शरिया ऑडिट की इम्पोर्टेंस कितनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। आज जो है वो अगर लेट सपोज किसी छोटे अमाउंट की चैरिटी अगर किसी शरिया ऑडिट ने करवा दी थी तो एक बहुत बड़ी शरिया नॉन कंप्लाइंस जो है वो इनकम को उसने आज उस ट्रांजिशन को फिक्स करके बचा लिया। तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे मैनेजमेंट को शरिया इंटरनल शरिया ऑडिट की कैपेसिटी का और उसकी वैल्यू का अंदाजा हो रहा है वो वैसे वैसे उसकी सपोर्ट बढ़ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड डेटा एनालिसिस के ऊपर है। टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कमी है। अब आस्ते आस्ते जिस तरह हम ट्रांजिशन अभी भी देखें, अब हम अगर हम ट्रांजिशन को देखें तो मुख्तलिफ यानी बैंक्स के अंदर जो बाहर के बैंक है वो ऐप के ऊपर सारी ट्रांजिशन कंक्लूड हो रही हैं। अब होपफुली डिजिटल बैंक हमारे पास अब आ रहे हैं, हो सकता है ये मसला हमारी तरफ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाए कि मुराबाहा की ट्रांजिशन इस्तिस्ना की ट्रांजिशन अब जो है वो ऐप के थ्रू ही हो जाए। हो सकता है इंशाल्लाह ताला आगे दिनों के अंदर इस बात को हम वो भी कर लें कि और ऐप भी डेवलप करने से शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सेशन मुकम्मल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और Q&A का सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। Jazakallah khair, Mr. Rahil, for such an enlightening and thought-provoking presentation. We'll now proceed with the Q&A sessions, and I'll read the questions for you. Okay. And first of all, we have the question from. First, I would like to thank Mr. Muhammad Abdus Saif, if I'm not mistaken. He has joined from Bangladesh. Thank you for joining us. And then we have a question. Muhammad Saiful Islam. Yes, I'm sorry, I mispronounced it. It's Muhammad Saiful Islam. He has joined from Bangladesh. Thank you for joining us. And next question is IAASP is a body from IFAC. Mr. Muhammad Shiraz is asking this question. शिराज कम अगेन आप क्या सवाल किया उन्होंने? He is asking, is IAASP a body from IFAC? नहीं, मुझे इस सवाल से नहीं पता। अगर आपको पता है रुबाब आप बता दें। सर मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ सवाल सही से प्रॉपरली नहीं पूछा। IFAC और IASP अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स को वो किस तरह कंपेयर करना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। मैं भी थोड़ा सा Maybe. Okay, next question is from Mr. Sayyid Faraz Ahmed.
What will be the impact of AI on internal Sharia audit and Islamic banking contracts like digital contracts? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है फराज। देखें, इंटरनल शरिया ऑडिट एआई आज अब देखें हो क्या रहा है कि जैसे पहले, यानी मैं भी हमने उसी दौर का हूं कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और डॉक्यूमेंट को देखने के बाद हम कहते हैं कि जी अच्छा फला डेट में ये मसले मसाइल हैं, ये चीजें आप जो है वो इसको देख लें। अब जो दौर हमारे पास आ रहा है वो एआई का दौर हमारे पास आ रहा है। हम उन ट्रांजिशंस को जो कि हम खुद फिजिकली वेरीफाई करते थे, बाज दफा फिजिकल वेरीफाई करते हुए आप नंबर्स को मिस कर जाते हैं, लेकिन Hmm. आप अपने सॉफ्टवेयर को, उस ट्रांजिशन को आप उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो आपको उसी वक्त ही जो है वो चीजें आपको बता देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क क्या क्या है। लेट सपोज बायबैक की ट्रांजिशन आपके पास निकल आई, सर जो आपने जो इनवॉइस लिया है, ये तो इनवॉइस जो है वो ट्रांजिशन से पहले की, ये तो कस्टमर ने खुद ही परचेज किया हुआ है, या एसेट जो है वो आपका जो है वो इसकी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम था तो और वो एसेट जो है वो कंज्यूम हो चुका होगा। डेफिनेटली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी जो है वो एआई का रोल बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं जिसके अंदर हम तवरुक की तरफ भी मूव हो रहे हैं। उस तवरुक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल ही हैं और इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली ये हमारे लिए एआई, कुछ लोग समझते हैं ना कि एआई आएगा तो यार हमारी जॉब्स का क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगी, नौकरियां कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ज़माने के अंदर जब हमारे वालिदैन जो है वो काम करते थे, उनके वालिदैन जो काम करते थे, भाई कंप्यूटर आ गया तो अब काम खत्म। क्यों, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन का चीज़ें चलती थी, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आने के बाद अब नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। तो ये सब बात कहने वाली बात है कि अल्लाह ने इंसान का दिमाग ऐसा बनाया है कि वो हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और चीज़ें चली बत एआई आएगा तो वो डेफिनिटली इंसान के लिए हेल्पफुल होगा। अनटिल अनलेस इंसान खुद जो है वो एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हर चीज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान ने डेवलप किया है, सारी कोडिंग इंसान ने डेवलप की है, डेफिनेटली वो उसके ऊपर कोई चीज हो नहीं सकती। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से यूज भी करेंगे। जी। Okay, so another question is from Mr. Muhammad Umar Tanvir. He's asking, some RMs doesn't know technicalities of the product they sell. I have asked couple of RMs how their tawarruk based personal finance applies profit rate upfront with installment or type application reducing outstanding. They said reducing outstanding method. I asked, as sale has already occurred, you cannot apply profit again. They say they do not know the technicalities but can connect you with the product team. Or we have Sharia certificates. This is very bad reputation for bank if customer facing employee are unaware of product mechanism, especially when they are seniors. So, उमैर उमैर मुझे लग रहा है आपने तवरुक प्रोडक्ट यूज की भी है या आपने कोई कार्ड यूज किया है। देखें, इस वक्त तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एडिशनल कोई प्रॉफिट नहीं चार्ज हो सकता। मैं आपको हमारा सेशन ऑडिट का है, ये जिस प्रोडक्ट की बात बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली एक तवरुक प्रोडक्ट है। उसके अंदर तवरुक के अंदर एक पूरा एक डिफरेंट मैकेनिज्म है तवरुक का। और ये मैकेनिज्म इस तरह का है कि अगर आपने कोई एसेट सेल की, आप तो आपने वो डेफर्ड में सेल की और उसके बाद उसका प्रॉफिट जो है वो आपने सेल परचेज जैसे नॉर्मल करते हैं हम। अब उसमें होता ये है कि आपने अगर एक ट्रांजेक्शन एक एसेट सेल कर दी तो उसमें बैंक कहता है ये है कि मैंने ही आपका ये प्रॉफिट जो है वो डेफर कर दिया। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि ये आउटस्टैंडिंग रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर प्रॉफिट लग रहा है, लेकिन जितना डिमांड करता है बैंक, बेसिकली मैं यहाँ पूरा एक शरिया स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अगर आप उमैर तनवीर साहब, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें तो मैं आपका ये सवाल एड्रेस कर दूंगी। काफी दूसरे सवाल भी मुझे नजर आ रहे हैं, so लेकिन can you please आपका share your आपका email कंसर्न, ID? सॉरी, Can you please share your email ID so people can, ask question on your personal email?
ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है, चैट में डाल दिया, आप प्लीज को देख लीजिए। Perfect, तो perfect, perfect. मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमैर तनवीर साहब से कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लें, और मैं आपको पूरा इसको ब्रीफ कर दूंगा प्रॉपरली, और आपका एड्रेस इंशाल्लाह ताला उस पे हो जाएगा। Sir, I have one question. In fact, I need to clarify myself. Is Tawarruk used basically in UAE mostly, or is it like present in Pakistan? Because नो 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 Tawarruk नो, I haven't seen तवरुक in Pakistan. तवरुक इज मोस्टली यूज इन यूएई, जीसीसी कंट्री। Yeah, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी उन्होंने रिफॉर्म किए हैं, खासतौर पे यूएई में, सॉरी right. ओमान में उन्होंने अब तवरुक को जो है वो बहुत कम कर दिया है, बहुत रिड्यूस कर दिया है तवरुक को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि तवरुक एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें वंस एक दफा आप उसको यूज कर लें तो आप कोई और दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी समझे, रनिंग मुशारका है कि आपने एक दफा तवरुक दे दिया तो वो तवरुक फिर चलता ही रहता है, फिर वो रुकता नहीं है। और फिर आपका जो इस्लामिक बैंकिंग का ट्रू एंड फेयर जो मैकेनिज्म है कि जो पैसा एक हाथ में ना रहे, वो मैकेनिज्म खत्म हो जाए। जैसे इस्तस्ना है, मुराबा है, डिमिशी मुशारका है, ये सारी प्रोडक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर सिर्फ तवरुक ही तवरुक चलता रहेगा तो तवरुक इस Exactly. वक्त तवरुक सिर्फ इस वक्त यूज किया जा रहा है पाकिस्तान में कि उनको उस उन बैंक्स को या उन लोगों को अलाउ किया जाए जो कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर है। स्टेट बैंक इस बात को कहता भी है कि आप जो है वो एक नई प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हो। जैसे हमने इस्तस्ना की बात की, मुराबा की बात की, और दूसरे बहुत सारे शरिया स्टैंडर्ड के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम वो देखें तो हम उसकी कॉम्बिनेशन के मुताबिक काम कर सकते हैं। Thank you, sir. Sir, I request all my participants whose questions have not been shared, as we are already running out of time. Sir, just one last question from my side. What advice would you give to new Islamic bankers entering the field of Sharia audit and governance? देखिए, जो नए आना चाहते हैं इस्लामिक बैंकिंग में और शरिया ऑडिट और शरिया कंप्लाइंस में आना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं एडवाइस सिंपल ये करूंगा कि पहले तो वो अपनी शरिया इस्लामिक बैंकिंग की जो नॉलेज है, कैपेसिटी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छी इंस्टीट्यूट से जो है वो ट्रेनिंग लें। जैसे अल सादिक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहा है इस सिलसिले के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की फ्लरिश के लिए। जिस तरह वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स और पीजीडी प्रोग्राम्स, इसी तरह सीआई जो है वो आईबीए सीफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरह दारुल कराची वाले जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सीआई, और इस तरह बहुत सारे जो है वो अच्छे रिनॉन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है जो ये ऑर्गेनाइज करें, उनसे कनेक्ट हों, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करें, उनके वेबिनार्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें। डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और वो काम भी करें। सर, ये सिर्फ नए के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो इस वक्त कनेक्टेड हैं कन्वेंशनल बैंक के साथ भी। देखिए, अल्टीमेटली जो है वो 2028 तक सब में कन्वेंशन इस्लामिक होना है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक बंदे की होनी चाहिए, चाहे वो ऑडिट में हो, चाहे वो कंप्लायंस में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसको ये बेसिक वाला। अपने इस मामलात के बारे में पता होना चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग काम कैसे कर रही है, किस तरह काम करती है। पहले जो आपने सुना होगा, मुझे अच्छी तरह याद है 2020 उसके अंदर शुरू में के लोग ये कहते थे कि जो है ना वो कान को इधर, नाक को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, एक ही बात है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट आंटी लोगों को को समझ में आ कहो गया कि कमरा है कर देना उनका। कि कॉन्सेप्ट अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग। कुछ मुझे कुछ सवाल नजर आए, शब्बर साहब ने सवाल किया है, दिस इज माय एडवाइस दैट एनी ओनली टॉपिक द क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। सर, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब इन सब से हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो राहिल साहब को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और व्हाट्सएप चैनल का भी एड्रेस हमने शेयर किया है। आप काइंडली उसको ज्वाइन करें एंड देन यू कैन हैव डिस्कशन विद मिस्टर राहिल एज वेल। So, as we approach the end of the today's session, I would like to take a moment to express my sincere gratitude to Mr. Rahil Hassan. He
I must say that today's discussion has highlighted the indispensable role of internal Sharia audit in strengthening Islamic banking. Ensuring that Sharia compliance is not just a regulatory requirement, it is a trust, an amana, and a responsibility we all share for the integrity of the system. I'm truly grateful to our speaker for sharing his valuable time and expertise. On behalf of Al Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance, and Takaful, I extend my heartfelt thanks to our respected speaker, Mr. Muhammad Rahil Hassan, all our participants, and the entire organizing team behind this webinar. Your presence and your contribution has really made this event meaningful and impactful. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us with the wisdom, sincerity, and strength to uphold Sharia principles in all aspects of Islamic finance. May He enable us to contribute positively to the growth and credibility of Islamic banking industry. Thank you once again for joining us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. Thank you so much. Thank you.